little hot water. Can you see? Yeah, I think you can see. You add Seda namak to it, to the water, around 1 liter water, and half a tablespoon Seda namak. Stir the pot with the neem stick. Use the neem stick as dand dhati. Try to reach the pharynges, across the larynges, under the mandibular, on the pharynges, and try to reach the eustachian canal. Once you made the brush out of it, just use the brush to reach every part of the buccal cavity. Reach every part of buccal cavity. The buccal cavity has got all the nerves coming. So it will stimulate the whole of nervous system to the cranial system. Precautions I'll tell you later what to do. Try and reach the place which you do not get the sensation otherwise. Yeah. So try and reach everywhere where your sensations are not reaching, or you're not able to voluntarily use your muscles to set the channels right or drain the mucus out. Try and reach. I'm doing it not completely because one item itself will take around half an hour. So this is Danda Dhati. I already demonstrated to you the Vastra Dhati, Sutra Meti. I could not go in sequence because it takes a lot of time and we did not have time. So once we are through with the whole system, उसके बाद हम गले में गार्गल try and do the
swishing in the buccal cavity using each muscle. Try to achieve independence of these muscles. Cheek muscles, the mandible muscles, the tongue muscles, the eye muscles. All this will get independent if you do this swishing for a longer period. And then do the deeper gargle so that you can take the water down wherever the gullet is. Do the gargles so that the salt water reaches the chain of or the pearl of the lymphatic glands. These are here, lymphatic glands. So aim here is to drain out the lymph into the mucus and mucus out of the buccal cavity, which will help to improve your immunity system, so-called immunity system, which works to clean your blood on a daily basis. So it has two places. One is in the pelvic region, there are lots of it here, and lots of it here. So there are two places where it is active maximum. Around 4 liters of lymph gets drained from here in a day. So that has to be done. Once you're done with the buccal cavity, you should have already done your eyes by then. So I just say with this water which is there, you can add a bit of shahad to it. You can add a bit of shahad to it. Adding shahad will help the eyes, because eyes is essentially the pitta functioning inside the ophthalmic fluid is the one which is to be treated. So just fill in the water in the eye cups. Fill in the water there, that's salt water. That salt water you can fill in and then use this neem stick to add some shahad. To add some shahad to it. And fill your mouth with some water. So that will drain out the whole excess of mucus which would have got into the ophthalmic cavity or the orbital cavity of your eyes, and it will ease out all the muscles which are responsible. They are
four category of muscles controlled by four different nerves, cranial nerves, which are responsible for focusing the eye and its functioning. So the eye या जो आंखें हैं वो सबसे महत्वपूर्ण इंद्रियां हैं. उसी से आप जो आहार है, जो जो दृश्य है जीवन का, वो उसको आप परसीव कर पाते हैं. So they have to be clean and good so that you see what you want to see. We'll go through with that. Then you can do some Jalaniti. Just first drink the water to nose, and later you can use it to the other nose. So just drink some. You should feel by drinking into the eustachian canal, जो कान और नाक को जोड़ती है eustachian canal, जो आपको ऐसे फील होगी, फिर ऐसे जाके डोज इनटू द nasal cavity, वो आपको फील हो, उसमें पानी आपको फील होना चाहिए कि आप उसको साफ करें. इसी प्रकार से दूसरे नोस्ट्रल से to keep the torso straight and empty here. अगर इसको यहाँ खाली रखेंगे तो पानी अपने आप अंदर जाए, सांस निकाल लेंगे. जब पानी आप पी लें, अंदर चला जाए, फिर आप एक नाक से दूसरी नाक से पानी निकालें और इंश्योर करें कि जो आप पानी नाक में डाल रहे हैं तो वो मैक्सिमली जाएगा. पानी को कंट्रोल करना आसान. तो पहले सिर्फ नाक में पानी को जाने दें, वो अपने आप बाहर आना शुरू हो जाएगा. जब पानी नाक से पूरा ड्रेन हो जाए, फिर दूसरी नाक में इसी तरह से
ओके, सो आई एम जस्ट डेमोन्स्ट्रेटिंग फॉर थोड़ा जल्दी बिकॉज समय ज़्यादा लग जाएगा। ये आपने तकरीबन 250 ml से आधा लीटर पानी एक नाक से पीना है, उसी प्रकार से दूसरी नाक से पीना है। और जब वो पूरी तरह से मसल्स कंट्रोल में आ जाए, इस तरह से swallow करना है, सांस लेने में और क्या सिस्टम है। उसके बाद आपने नाक को और साइनस कैविटी को ड्रेन करना है। तो आपने देखना है कि आप जब जिस पोजीशन में हैं, अगर स्पेशली अगर ऑब्स्ट्रक्शन है नाक में, जैसे मुझे इंजरी के समय पे हो गई थी, डीएनएस और सीवियर ये हो गया था, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा सांस को कंट्रोल करके नाक से जो पानी गया है वो ड्रेन करना चाहिए। अगर पानी रुक जाएगा तो बाद में फिर आपको जुकाम जैसी फीलिंग होती रहेगी और थोड़ा ठीक नहीं लगेगा। उसके बाद आप उसके बाद आप आंख और जो आईब्रोज है उनको पानी से ड्रेन कर लीजिए या वॉश कर लीजिए, जिससे कि जो स्कैपुला है, जो आगे का आंख का हिस्सा है और जो लैक्रिमल ग्लैंड्स हैं वो दोनों एक्टिवेट हो जाए और जो ऊपर से आईज का ड्रेनेज है वो ठीक हो जाए। कितनी दूर से आपने पानी को स्ट्राइक करना है ये डिपेंड करता है कि आपकी आंखों की क्या हालत है। अगर आप प्रोट्रूडेड आईज हैं, आपकी पहले ही बाहर हैं, तो ज़्यादा ऊपर से पानी नहीं डालना है, और अगर अंदर डीप सेट है तो आपने काफ़ी ऊपर से उसमें पानी डालना है। तो पहले पानी मुंह में डालना है और उसके बाद आपको डायरेक्टली हिट करना है। जनरली ये आउटडोर करना चाहिए, सूरज की तरफ देखते हुए। अगर षटकर्म की सीरीज में और या सीक्वेंस में उसको हम देखें तो सबसे पहले बाह्य त्वचा यानी द आउटर स्किन, इट इज टू बी टेकन केयर ऑफ। एब्ल्यूशन करने के बाद आप सो कॉल्ड फ्रेश होने के बाद सबसे पहले सीधे ठंडे पानी में नहाइए। हरित संहिता में एक अच्छा प्रोसीजर दिया है किस तरह से आपने नहाना चाहिए, और सुबह का एब्ल्यूशन का सिस्टम को इसमें पंचकर्म भी शामिल है हरित संहिता में, उन्होंने बहुत अच्छा दिया है। हरित इनिशियल जो ऋषि रहे हैं जिन्होंने आयुर्वेद और योग को ग्रहण किया था, सो कॉल्ड ब्रह्मा से और शिव से, वो उनमें से एक थे। सबसे पहले आपने त्वचा का करना है, आपने पैरों को पहले भिगोना है। जो पित्त प्रधान है, वात प्रधान है, उन्होंने ठंडे पानी से, और जो कफ प्रधान है उनको गर्म पानी से पैरों को पहले भिगोना है। उसके बाद पानी को स्प्रिंकल करना है अपने ऊपर और बॉडी को तैयार होने देना है नहाने के लिए। Preparing yourself, so just go around 18 times reciting Gayatri mantra. This is the procedure given there, and there is a lot of science behind it. वो मैं बाद में आपको explain करूँगा। जब आप नहाने के लिए तैयार हो जाते हैं, then you must get into the pond. अगर pond नहीं है तो फिर आप शावर में पूरी तरह से खड़े हो जाएं। जब शावर में हैं तो पानी पहले पीछे
बैकबोन पे डालें, उसके बाद फिर सिर पे डालें। और जब आप बैकबोन और सिर पे पानी डाल रहे हैं तो सांस की जो गति है उसको मेंटेन करें। आपकी इस तरह से महीन सांस हो कि आप जो पानी ऊपर से आ रहा है उसको अंदर नाक में ले जा सके अपनी वॉलंटरीली, अपनी इच्छा से, और उसको चाहे बाहर निकाल दें चाहे मुंह से निकाल दें, पर वो काबिलियत आपकी सांस लेने की नहाने के समय होनी चाहिए, स्नान के समय। अगर वो सब काबिलियत होगी तो जो स्नान का इफेक्ट है, जो फायदा है, वो पूरे शरीर में पहुंचेगा, सिर्फ स्किन के थ्रू ही नहीं, जो इंटरनल चैनल्स हैं उनके थ्रू। नहाने पानी गीला करने के बाद आपने रेहे मिट्टी जो होती है, रेहे मिट्टी, जिसमें आपने देखा होगा बहुत सारे जानवर जब उनको इन्फेक्शन हो जाते हैं टिक के या किसी के, वो उसमें जाकर लेटते हैं, स्पेशली जिनके बाल होते हैं जानवरों के, और वो लेटने के बाद फिर वो दोबारा उनमें पसीना आता है और फिर वो पानी में घुस के नहा लेते हैं। तो वो जो रेहे मिट्टी है वो आपने बॉडी के ऊपर करनी है, लगानी है। और अगर रेहे मिट्टी नहीं लगा सकते तो गर्मियों के समय में मुल्तानी मिट्टी, आजकल उसकी सोप्स भी बनती है, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं शरीर के लिए, अपनी स्किन की, त्वचा के लिए। इससे त्वचा सेंसिटिव हो जाएगी। और ये सबसे बड़ा ऑर्गन है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गन, क्योंकि इसी से अंदर के जो अवयव हैं उनका सेंसेशन और इसी से बाहर के टच का सेंसेशन हमें मिलता है, और जो कि बहुत बड़ा क्लू और डाटा हमें देता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उसके बाद जब आपने रेहे से अपने आप को रगड़ लिया, फिर दोबारा आप पानी में जाइए। पानी में खड़े होने के बाद रिक्वायर्ड समय, यानी कि बॉडी टेम्परेचर जब थर्मोरेगुलेटर आपको बोलता है कि आप नहा लिए, तब आप वहां से निकलिए। नहाने का मतलब ये हम जनरली समझ लेते हैं कि बस गए साबुन लगाए और बाहर ना। नहाने का मतलब है कि स्किन को सेंसिटिव इतना कर लें कि वो थर्मो रेगुलेशन, जो दिन के टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी वगैरह के हिसाब से ठीक से मैसेज दे, और आपका जो शरीर है वो जो उसका थर्मल रेगुलेशन है वो ठीक हो जाए। स्किन को कर लेने के बाद आपने फिर उसको ड्राई क्लॉथ से उसको रगड़ना उसको नीचे की दिशा में, क्योंकि बालों की जो पोजीशन है, तो जो अलाइनमेंट है वो बाहर की तरफ। तो आप जब उसके अलाइनमेंट में करेंगे तो उसमें जो छिपा हुआ सीब्स है, जो उससे निकलने वाले पदार्थ है, वो बाहर आ जाएंगे और स्किन जो है उसी हिसाब से बिल्कुल साफ हो जाएगी। स्किन साफ करने के बाद आपने ब्रेथ को कंट्रोल करना है, प्राणायाम थोड़ा सा करना है, स्पेशली जिसको भ्रष्ट का प्राणायाम कहते हैं, वो आप कर सकते हैं, जिससे कि स्किन जो है वो पूरी तरह से तैयार हो जाए अपने काम करने के लिए। उसके बाद सीक्वेंस में आपके आंखें, यानी कि आपने मुंह में पानी भरना है और जैसे मैंने दिखाया मेडिकेटेड वाटर से या नॉर्मल वाटर से आपने आंखों को डुबोना है। उसके बाद सांस लेनी है, जिससे कि आंखों का जो चैनल्स है कनेक्टिंग करने वाले नाक के साथ या ऊपर अंदर की तरफ एथमोइड साइनसेस के अंदर या फ्रंट साइनस में, वो सभी के सभी वेट हो जाए और वहां पे उनकी रीच हो जाए। सॉल्ट है वो वहां से एक्सेस वाटर और म्यूकस ड्रेन कर लेगा और फ्रेश म्यूकस और वाटर वहां तैयार होगा, जिससे कि आपने फ्रेश। फिर आपने दूर से उसको, जैसे मैंने वॉश किया, आपने उनको वॉश किया। आंखों की केयर करने के बाद फिर नेजल कैविटी की केयर करें, क्योंकि आप देखिए आप ड्रेनेज कहाँ से हो रहा है। पहले आपके सिर से ड्रेन हुआ, फिर आपने नाक आंखों से ड्रेन किया। आंखों के बाद आप नाक को, जो मैंने आपको नीति बताई है, सूत्र नीति, जल नीति, उनके जरिए उसको आप सेट कर लें। सूत्र नीति और जल नीति जनरली हम मानते हैं कि नाक को साफ कर लें। ये नाक को साफ करने का एक्चुअली मतलब नहीं है। जल नीति, सूत्र नीति या जो भी नीति हम करते हैं, इन सभी नीति का जो एम है, पर्पज है, वो है शरीर के अंदर इनवॉलंटरी ऑटोनोमस सिस्टम को एक्टिवेट करना। जो सेलरी मसल्स हैं, जो वेस्गल प्लूरा है, उन सब का एक बहुत बड़ा फंक्शन है बॉडी में। और जब हम डेली रोजमर्रा में काम कर रहे हैं और ठीक से ब्रीदिंग नहीं करते हैं या उसका ध्यान नहीं रखते हैं, तो ये फंक्शनिंग जो है थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है और पूरी तरह से नहीं होती। और जब पूरी तरह से फंक्शनिंग नहीं होती है तो क्लेंजिंग जो है वो पूरी तरह से नहीं होती। तो इनका पर्पस है टू स्टिमुलेट द क्रेनियल सिस्टम और क्रेनियल नर्वस सिस्टम, सो दैट all the muscles involved, they get cleaned, activated
and once they are activated, they will certainly drain all the mucus from the head. And you know, when जब आपका मस्तिष्क ही पूरे कफ में दबा प्रेशर में रहेगा उसके क्रेनियल कैविटी के अंदर, मसल्स के अंदर, तो सर्टेनली आपका सोच विचार भी ठीक से नहीं हो पाएगा. तो पर्पस इसका रगड़ के साफ करना नहीं है, बल्कि बहुत केयरफुली और बहुत सटली अंदर जो सिस्टम है उसको समझना है और समझ के उस सिस्टम को एक्टिवेट करना है, ना कि जबरदस्ती साफ करना है दंड धौती से या वस्त्र धौती से. वो नहीं है पर्पस. तो उस पर्पस को समझ लेंगे, वो मैं इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन भी बाद में दूंगा, बिकॉज आज समय कम है डेमोंस्ट्रेशन की वजह से. तो वो आप समझ लें उसको. मेन मुद्दा उसका रगड़ के साफ करना नहीं, सिस्टम को एक्टिवेट करना है. नाक को एक्टिवेट करने के बाद जब उसका म्यूकस फ्लो, जैसे आपने देखा, अपने आप ड्रॉप होना शुरू हो जाता है आई से और नोज से. जब वो अपने आप ड्रॉप होना शुरू हो जाए, मान लें कि आपका सिस्टम रीएक्टिवेट हो गया है, रीबूट हो गया है. जो नेजल सिस्टम है, इसके अंदर तकरीबन 150 मसल्स हैं जो इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हैं. हो पाएगा. आंखों के बाद हमने फिर कानों पे ध्यान देना है. कानों पे ध्यान देने के लिए आपने जब नाक से पानी पिएंगे तो ऑटोमेटिकली जो सिस्टम है वो कान की जो इरिटेशन कैनाल है जो नाक में आती है और गले में जाती है वो एक्टिवेट होती है. गले में उसमें पानी लगता है, वो एक्टिवेट होती है, तो जो उसके अंदर स्टेगनेंट म्यूकस है या सिक्रिएशंस हैं वो सीधे नाक के अंदर चले जाते हैं दोनों तरफ. और जब नाक में चले जाते हैं तो फिर आप उनको ब्रीदिंग के जरिए या प्राणायाम के जरिए उनको ड्रेन कर सकते. तो आपके कान में जो सनसनाहट है, कम सुनना है या गलत सुनना है, ये सभी ठीक हो जाए. बिकॉज सभी इंद्रियां एक डिस्क्रिमिनेशन रखती हैं. अगर वो शुद्ध होगी, साफ होगी, तो वो डिस्क्रिमिनेट कर पाएंगी कि क्या मैंने इस ध्वनि को सुनना है या नहीं सुनना, या मुझे इस दृश्य को देखना है या नहीं देखना. वो डिस्क्रिमिनेशन उनमें नेचुरल आ जाती है. तो उनको शुद्ध रखना आवश्यक है. कानों की शुद्धि के बाद फिर आपने बिल्कुल कैविटी को दोबारा से, जैसे मैंने बताया था, दंत धौती के जरिए उसको साफ. बिल्कुल कैविटी में हर एक मसल्स को अप्रोच करना है, टच करना है. उससे ना तो आपके कभी दांत खराब होंगे और दांतों का जो सेंसिटिविटी है वो इम्प्रूव हो जाएगी. आपको पता चल जाएगा कि आप एक्स्ट्रा हार्ड चीज तो नहीं खा रहे हैं जो कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम हजम नहीं कर सकता. ये दांतों का एक फंक्शन है, सेंसरी फंक्शन, जो हम बिल्कुल भूल जाते हैं. हम सोचते हैं बस उसका मेस्टिकेशन का काम है. उसमें जो मसूड़े हैं, नर्व्स हैं, उनका काम ये भी है कि आपको किस तरह का, कितने हार्डनेस का भोजन करना है वो भी आपको बता देंगे अगर वो ठीक से एक्टिवेटेड होंगे. इसी प्रकार से फिर आपने जीभ के नीचे, ऊपर, तालू में, सब जगह जो मसल्स हैं, नर्व्स हैं, उनको एक्टिवेट करना है. और उनके एक्टिवेशन से आपको पता है स्वाद आपका इम्प्रूव होगा, जिससे कि आप डिस्क्रिमिनेट कर पाएंगे क्या खाना है क्या नहीं खाना है. इसी तरह से आपका जो ब्रीदिंग पैटर्न है वो इम्प्रूव हो जाएगा. आपको पता चल जाएगा कि सांस कहाँ जानी है, कहाँ नहीं जानी. और जनरली हम ये मान लेते हैं कि मोटापा जो है कैलोरीज की वजह से होता है. नहीं, आप ध्यान कर लीजिएगा, जहां आप सांस को नहीं पहुंचा पाएंगे, जहां मसल्स टाइट नहीं होंगे, वहीं फैट डिपॉजिट होगा और कहीं पे फैट डिपॉजिट नहीं होगा. तो अगर ब्रीदिंग पैटर्न सही है तो आपको ओबेसिटी नहीं हो सकती, आप मोटे नहीं हो सकते. आप उतने वेट रहेंगे जितना स्केलेटल सिस्टम बियर कर सकता है, उससे ज्यादा वेट होगा ही अगर ब्रीदिंग पैटर्न सही है. तो इस तरह से हमने उसके बाद जब वस्त्र धौती करी, तो वस्त्र धौती का एक बहुत इंपॉर्टेंट जो काम है वो है वेगस नर्व का जो सिस्टम है बॉडी में, उसको एक्टिवेट करना. जो मीडिया स्टेनियम है, जो हमारे लंग्स के और रीढ़ की हड्डी के बीच में जो कैविटी है, जो गैप है, वो उससे एक्टिवेट हो जाता है. जब आप ये कपड़ा अंदर जाता है तो सभी मसल्स जो हैं, चाहे इसोफेगस के मसल्स हो, ट्रैकियल मसल्स हो, फेरेंजियल मसल्स हो, चाहे वो ट्रेपेजियस मसल्स हो, चाहे वो इंटरकोस्टल मसल्स हो, चाहे वो ब्रैकियल मसल्स हो, ये सभी के सभी उस एक्टिविटी से एक्टिवेट होते हैं. और जैसे जैसे वो आपके शरीर में नीचे की तरफ जाता रहता है, ये स्टमक की जो लाइन के अंदर, वैसे वैसे आप पाएंगे कि आपके कमर में भी, आपके पैरों में भी सेंसेशन चेंज होती चली जाएगी. क्योंकि जो पैरास्टालसिस है, मूवमेंट शरीर का या अवयव का, वो कोई इंडिपेंडेंट मूवमेंट नहीं है.
वो एक कनेक्टेड मूवमेंट है आपके रेस्पिरेशन से, आपके स्वॉलोइंग से, आपके बोलने से। तो जब आप कॉशियसली स्वॉलोइंग करेंगे कि इस तरह से, तो वो नीचे की तरफ पेरिस्टालसिस शुरू होगा, जिसके साथ साथ सभी जो सिस्टम्स हैं, इनवॉलंटरी सिस्टम्स, जिनमें वेगस नर्व इनोवेट करती है, जिसका काम पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करना है, वो अपना काम दुरुस्ती से कर पाते हैं, क्योंकि उसको स्पेस मिलता है। तो आपके सभी मसल्स हार्ड हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं, और मस्कुलर सिस्टम जो है, जब स्केलेटल सिस्टम बाहर का ठीक होता है तो अंदर का स्पेस अवेलेबिलिटी ठीक होता है। जब स्पेस अवेलेबिलिटी ठीक होगी तो सारा एनाटॉमिकल जो अलाइनमेंट है वो ठीक हो जाएगा, और एनाटॉमिकल अलाइनमेंट ठीक होने से जो आपका फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग है वो भी इंप्रूव हो जाएगा। तो आपने उसको पेट के अंदर पूरा जाने देना है, वॉलंटरीली किस तरह से करना है वो मैं अलग अलग, क्योंकि समय कम है, उसमें एक बहुत टेक्निकल चीज है, उसको अटेम्प्ट ना करें आप एकदम से, डेमोन्स्ट्रेशन ले, गाइडेंस में करें। जैसे मैंने बताया, जब मैं हीलिंग सेंटर पे आऊँ तो आप वहाँ आ सकते हैं, देख सकते हैं, गाइडेंस में करें पहले, और उसके बाद फिर आप उसको अपने आप प्रैक्टिस करें, क्योंकि अगर बिना गाइडेंस के करेंगे तो हो सकता है कोई किसी तरह का प्रॉब्लम उसमें आ जाए, तो आपने वो ध्यान रखना है। कोशिश कर सकते हैं, अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो देयर इज नो प्रॉब्लम, और जनरली मैं वो सलाह नहीं। ये सारी शुद्धि कर लेने के बाद फिर आपने प्राणायाम करना है। प्राणायाम के लिए सबसे बढ़िया जो तरीका है वो फोर्सफुली, कि आपके लंग्स एक्टिवेट हो जाए पूरी तरह से, वो है शंख को ब्लो करने का, बजाने का। शंख ब्लो करने की भी एक टेक्निक है, आप उसको इसी तरह से ना बजा दें, नहीं तो आपकी क्रेनियल कैविटी की प्रॉब्लम हो सकती है। जब आपने सारी सफाई कर ली है, अभी आपने प्रेशर डालना है उन्हीं अंगों के ऊपर जहां से आपने स्क्वीज आउट करना है म्यूकस। तो उसके लिए सबसे बढ़िया तरीका है शंख को ब्लो करने का। ये प्राणायाम का एक तरीका है। आप देखेंगे कि अपने आप आपके एब्डोमिनल मसल्स, आपके बैक मसल्स, आपके चेस्ट मसल्स, सभी के सभी, ट्रेपेजियस, दी डेल्टोइड्स, सभी के सभी अपने आप एक्टिवेट, ये अपना पूरा काम अपने आप करते हैं। ये पूरा स्क्वीजिंग जो है मसल्स की कर देते हैं, जिससे कि जो भी स्टेगनेंट म्यूकस अभी भी शरीर में है वो बाहर निकल जाए। तो ये एक षटकर्म क्रिया का एक तरीका है। तो आपको मैंने धौती ने की, ये भी आपको पूरी तरह से समझा। जल नेति, वस्त्र नेति, वस्त्र धोती, सूत्र नेति, ये सब आपको पता है। इसके बाद जो बाकी बचे हुए 4 कर्म हैं वो उनको आप समझ लीजिए कि उसमें क्या करना। एक है त्रिताप। सबसे पहले, जैसे मैंने बताया, हर सीक्वेंस में सबसे पहले आइज। तो आपने मेडिकेटेड काजल साफ करने के बाद आइज में लगाना है। इस तरह से काजल बनाने का एक एपरेटस है, आप ले सकते हैं कहीं से भी। और इसमें मेडिसिन जो पाउडर है वो आपके आंख के रिक्वायरमेंट के हिसाब से कैस्टर ऑयल में, या तिल के तेल में, करंज के तेल में, किसी में भी जो भी रिक्वायर्ड हो या फिजिशियन बताए, उस हिसाब से आपने बनाना है। इसको आपने सरसों के तेल के दिए के ऊपर काला कर लेना है। उसके अंदर 2 ड्रॉप कैस्टर ऑयल, मैं अपने वात के प्रकोप के कारण कैस्टर ऑयल, और कैस्टर ऑयल के अंदर जो मिक्सचर है आइस की मेडिसिन का, वो उसमें डाल लेना है। और डालने के बाद अपनी छोटी उंगली से उसमें आपने उसको रिसीव कर लेना है। उंगली में लगाने के बाद जहां आपको आंख में जिस मसल एरिया में ज्यादा प्रॉब्लम है, वहां से स्टार्ट करके दूसरे किनारे तक उसको ले जाना है, और सांस लेते रहना इस समय, जिससे कि मसल्स फ्री रहे और ये काजल पहुंच सके।
बिल्कुल शांत रहें, आंखों को फ्री रखें, जिससे कि उनसे निकलने वाला जो लैक्रिमल सिक्रेशन है, स्टेगनेंट सिक्रेशन है, वो सारा धीरे धीरे निकल जाए और जो उनका कनेक्शन है माइट साइनस के साथ, नोज के साथ, वो एस्टेब्लिश हो जाए पूरी तरह से। आप पाएंगे कि ये सिर्फ आंख यहाँ काम नहीं करती, जो पूरा इससे कनेक्टेड चैनल है राइट अप टू द ग्रोइंग, नीचे तक पूरा एक्टिवेट होता है और आपको फील होता है मूव होता हुआ। इसी प्रकार से दूसरी आंख में मसल्स को लूज रखना है, आंखों को लूज रखना है, स्कैर नहीं होना है, लूज मसल्स रखने हैं और फिर इसको अप्लाई करना है। इसको एक्टिवेट होने देना है। आप देखेंगे पूरा सिस्टम नीचे तक ये कनेक्टेड है। फिर आपने आंखों को बिल्कुल महीन खोलना है और एक ही जगह पे कोशिश करनी, फोकस करने की। आप पाएंगे कि अंदर से जो इंटरस्टेशियल स्पेस में फ्लूइड है वो भी मूव करता है और वो आपके पूरे चैनल्स के अंदर आंख के थ्रू बाहर आता है। तो जब आंखों से पानी आना शुरू हो जाए तो मान लीजिए तृप्ता का कंप्लीट हो, ये इसको बोलते स्टेडी गेज, जिससे आंखों की जो डिस्क्रिमिनेटरी पावर है, जिसकी कंसंट्रेशन पावर है, इसकी जो ऑप्थेल्मिक पावर है वो इम्प्रूव जाती है। आप देखेंगे कि इससे आपके जो चित्त है, जो मन है, उसको भी बड़ी शांति आती है। अब इसका जो साइंस है वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा कि कैसे लैक्रिमल सिक्रेशन से आपके भाव बदल जाते हैं, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। आंखों में तत्यागा कर लेने के बाद उसके बाद है आपने लॉलिकी, यानी कि टू मूव लाइक पेंडुलम। आप नीचे जमीन पर क्रॉस लेगेड बैठ जाइए, शरीर को कोशिश करिए कि दोनों जो बटक्स के बोन हैं, जो नीचे हड्डियां हैं, उन हड्डियों के ऊपर आप वेट लें। तो जब वो आपका वेट उनके ऊपर आ जाएगा तो बॉडी अपने आप बैलेंस हो जाएगी। तो आप उसको बैलेंस करना है, पहले बॉडी को सीधे उसमें पोजीशन में नहीं बैठना, तो पहले उसको फील करना है कि बोन्स कहाँ हैं, क्या आप उनके ऊपर बराबर बैलेंस बना के बैठ गए। आपको कैसे पता चलेगा कि आपका वेट उनके ऊपर ही आया है? जो आपके रीढ़ की हड्डी के साथ दो मसल्स हैं, इरेक्टस स्पाइनी मसल्स, जिनका काम है अपने बैकबोन को अपनी पोजीशन में रखना या उसके साथ उसको प्रोटेक्ट करके रखना, वो अपने आप नीचे से ऊपर की तरफ एक्टिवेट होना शुरू हो। ध्यान रखिए इसमें कि आपकी जो स्किन है वो सबसे बड़ा इंडिकेटर है कि क्या आपकी पोजीशन ठीक है। अगर कहीं आपको पिंचिंग महसूस हो रही है तो उसको खोलिए वापस, और फिर जब तक पिंचिंग खत्म ना हो तब तक उसको खोलिए, एडजस्ट करिए। जब आपको ऐसा लगे कि अब कहीं पे भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं और मेरा वेट पूरी तरह से जहां मैं चाह रहा हूं वहां आ गया है, तब आपने स्पाइन को लॉलिकी यानी पेंडुलम की तरह मूव करना है। कौन सी स्पाइन को? जो कोकोजियल रीजन है और उसके ऊपर का सैक्रल रीजन, वो एक हार्ड सिंगल बोन टाइप का है
जो कि पेल्विक गर्डल से पियर्स करता है, यानी कि पेल्विक गर्डल की बोन इस तरह से जा रही है हॉरिजॉन्टल, और वो उसके बीच में से इस प्रकार से लगा हुआ है। दूसरी साइड में भी इसी प्रकार से दूसरी बोन है, इन दोनों के बीच में वो पेंडुलम की तरह नीचे रखा है। जैसे अगर इसको मैं दिखाना चाहूँ शायद हो जाए, या इट इज लाइक दिस, इट इज लाइक दिस। तो आपने जो लॉ लिकी का एम है वो है कि आपने यहाँ से जो जो सैक्रम बोन है और नीचे जो कोकोजियल बोन है उनको मूव करना है, यानी कि इस तरह से या इस तरह से ये मूव होनी है, ये उसका पर्पस। अब आप जब इस तरह से बैठ जाएंगे तो आपको ये चीज महसूस होगी कि आपकी सैक्रल बोन और जो कोकोजियल बोन है वो इस तरह से लटक गई है। जब वो लटक जाए मध्य में, तब आप मान लें कि आपको पोस्चर ठीक हो गया, यानी जिस आसन में लॉ लिकी करनी है वो ठीक हो गया। जब आप माने कि ये ठीक हो गया है तो आपने टू एंड फ्रो मूवमेंट जो है शरीर का करना है, यानी कि शरीर को आगे की तरफ मूव करना है। आगे मूव करें तो सांस अंदर लें, जब सांस अंदर लेंगे उस समय कोकोजियल जो बोन है वो आगे आएगी और जो सैक्रल बोन है वो बाहर निकलेगी पीछे। सॉरी, उल्टा हो गया। जो टेल बोन है वो इज दिस, टेल बोन पीछे की तरफ बाहर जाएगी और जो ऊपर वाली बोन है हड्डी के नीचे वाला हिस्सा वो अंदर आएगा। और जब पीछे जाएंगे तो ये रिवर्स हो जाएगा, पीछे की तरफ जाएगा ऊपर वाला हिस्सा, नीचे वाला हिस्सा आगे की तरफ। ये पर्पज है। और जब आप इसको करेंगे तो फिर मैं बाद में बताऊंगा कि कितना इफेक्टिव ये आपके शरीर के लिए होगा। तो आगे आना है, बोन को कर्व करके और सांस लेना है। और जब बाहर सांस निकालनी है, पहले पेट ऊपर से नीचे, फिर बीच में से और फिर नीचे से, पूरी तरह से सांस बाहर निकालनी है। ये कार्रवाई आपने तब तक करनी है जब तक शरीर में पसीना ना आए। इसको करने से अलग अलग फायदे हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम के, नर्वस सिस्टम के, डाइजेस्टिव सिस्टम के, यूरिनरी सिस्टम। जैसे बोलते हैं कुंडलानी का वास या एनर्जी का वास कुंडलानी में है, तो योगिक भाषा में जो कोकोजियल बोन है या वो जंक्शन है ट्रक का, जिसको आयुर्वेदिक भाषा में त्वक जंक्शन बोल रहे हैं या जोड़ बोल रहे हैं, वो ही जगह है जहां से वो कहते हैं कुंडलानी राइज करती है, राइजेस अप। सो कैसे राइज करती है, क्या करती है वो एक इशू है जो बाद में मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको, कैसे करस्पॉन्डिंगली हम उसको नई मॉडर्न साइंस के हिसाब से समझ सकते। अभी के लिए जो षटकर्म का चौथा हिस्सा में बता रहा था आपको लॉ लिकी का, उसमें आगे टू एंड फ्रो का लॉ लिकी होगी। अब उसको आपने इस तरह से मूव करना है। तो सांस बाहर निकालनी जब आप पीछे हैं और सांस लेनी जब आप आगे हैं। अब हमने उसको साइड टू साइड मूव करना है। पहले उसको फ्री कर लीजिए, बीच वाली हड्डियों के ऊपर बैलेंस बना लीजिए जैसे सीसॉ का बैलेंस होता है। फिर शरीर को यहां से मूव करना है, आगे जाना है, ये पोजीशन अलग, और फिर सांस लेनी है। और उसके बाद वापस उल्टी दिशा में यही कार्रवाई करनी। पूरी कार्रवाई कर लेने के बाद सांस को पूरी तरह से बाहर निकालना है। सांस को बाहर निकालना है, नाभि को पीछे की तरफ ले जाना है, रीढ़ की हड्डी की तरफ।
तो उस तरह की लौलकी आपने इंटरनल ऑर्गन्स की भी कर देंगे। इससे पूरे इंटरनल ऑर्गन जो पूरी तरह से मसाज हो जाएंगे। मसाज का मतलब है कि उनकी जो नर्वस इनर्वेशंस हैं जिनकी वजह से वो नर्व की एनर्जी गेन करते हैं वो पूरी की पूरी जहां उनको चाहिए वहां पहुंच जाए। तो हमने देखा नौती नेति धौती तथा का लौलकी। अब हम आएंगे इसके बाद प्राणायाम पे। प्राणायाम को जैसे मैंने बताया था, इट इज जस्ट द मेथड ऑफ कंट्रोलिंग ब्रेथ टू प्योरीफाई योरसेल्फ। सो जो जिसको बोलते हैं अनुलोम विलोम या जिसको बोल रहे हैं हम लोग नाड़ी शोधन प्राणायाम, वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव इसमें प्राणायाम है। अब अंत में जब आपने सारी क्रियाएं कर ली और आपका सिस्टम एक्टिवेट हो गया, तो वो जो एकत्रित मल है उसका विसर्जन होगा। एक तो जब आप ये क्रिया करेंगे लौलकी की, तो अपने आप स्वेटिंग से या पसीने से ये बाहर निकलेगा। जैसे जो चैनल्स खुले हुए हैं आपके नाक से आंख से भी बाहर। लेकिन जो मल आपके पाचन तंत्र में इकट्ठा हो गया है ब्लड से निकलने के बाद या मसल से निकलने के बाद, उसको निकालने के लिए बस्तीकरण एक हिस्सा है हमारे षटकर्म का। यानी कि अंत में हम बस्तीकरण करेंगे। आपने एक टब लेना है। अगर आपके पास पॉन्ड है तो वो सबसे अच्छा है। अगर पॉन्ड नहीं है कोई तो टब लेना है बड़ा, जिसमें कि आप स्क्वाटिंग पोजीशन में बैठ सकें, कम से कम स्क्वाट यानी कि कमर तक का हिस्सा उसके अंदर डूब जाए। और स्क्वाट पोजीशन में, ऊपर पोजीशन में आपने बैठ के एम है कि आपके जिस तरह से हमने ऊपर के मसल्स को अपना कंट्रोल हासिल किया है कपड़ा डाल के, उसी तरह से हम नीचे पानी डाल के या अपनी उंगलियों से उसको एक्टिवेट करके हम उसके नर्व्स को अलग अलग कर दें। वहां पे एक बड़ी प्रॉब्लम जो लोग महसूस जिनको आती है, जनरली हमारे जो मेजर प्रॉब्लम्स आजकल आ रही है डाइजेस्टिव ट्रैक की, लोअर बैक की, घुटनों की, ये कारण एक इसका यही है कि जो लोअर एब्डोमेन है जिसको हम पेरिटोनियम कैविटी बोलते हैं, उसका जो फ्लोर है उसमें कोई अलग से मसल्स नहीं होते, वो फ्लोर ऐसे होता है और उसके पीछे ही एनस का जो मसल्स है वो जुड़े होते हैं। तो जनरली हम जब रिफ्लक्स करते हैं डेफिकेशन की, जो हम एनस मसल के ऊपर जोर लगाते हैं, साथ में जो पेरिटोनियम मसल्स हैं उनका जो फ्लो है वो भी नीचे की तरफ चला जाता है, और जिसकी वजह से प्रोलैप्स यूटेरस, प्रोलैप्स से एनस और ये सब चीजें होने लगती। इस बस्तीकरण का एम है कि हम जो फ्लोर है, जो पेल्विक का फ्लोर है, जो पेरिटोनियम फ्लोर है कैविटी का, उसको एनस की कैविटी से अलग करें, उनके मसल्स को अलग अलग यूज करें। तो जब आप पानी में रहेंगे तो आपने एनस को लूज करना है, पेरिनियम को टाइट करना है। पेरिनियम को टाइट करना है तो अपने आप टाइट होने से आपका पेट जो है वो टाइट होगा और एनस जो है पीछे से बाहर की तरफ आएगा। जब एनस पीछे से खुल जाएगा तो उसमें पानी जो है वो ऑटोमेटिकली अंदर सीप इन होगा बिकॉज ऑफ द प्रेशर। तो आपने बिल्कुल लूजली आराम से वहां रोकना है उसको, और जब आपको लगे कि पानी थोड़ा सा महसूस हो रहा है फिर वापस सांस को लेना है। जब आप सांस लेंगे तो ऑटोमेटिकली पेरिनियम जो पेरिटोनियल कैविटी का फ्लोर है वो नीचे जाएगा और एनएस बंद होगा। तो आपने एनएस को बंद करना है और पेरिटोनियम को फ्री, फिर पेरिटोनियम को टाइट करना है, एनएस को खोलना है। ये जो क्रिया है ये ही बस्तीकरण का या बस्ती का उद्देश्य है, ध्येय है। इससे जितने भी प्रॉब्लम है आपके लोअर नाभि के नीचे के, वो शर्तियां दूर हो जाती है। कोई भी चांस नहीं है कि कोई भी प्रॉब्लम इसमें से बच जाए, चाहे एंकल पेन हो, स्वेलिंग्स हो, वेरिकोज वेन्स हो, किसी भी तरह की समस्या वो सारी खत्म। तो ये 6 कर्म है एवोल्यूशन के, इनको इन्हें हमें करना चाहिए रोज, डेली, निरंतर। सो जो अभ्यास है वो निरंतर हो और धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ। अगर आप एक ही दिन में चाहेंगे कि मैं पूरा क्लीन हो जाऊं तो ये नहीं होगा। मुझे तकरीबन अभी 8 साल हो गए इसको प्रैक्टिस करते हुए, तो मुझे भी बिकॉज ऑफ द वेरियस इश्यूज इट इज नॉट इजी। तो शुरुआत में जब आप कर रहे हैं तो बहुत धैर्यपूर्वक ध्यान से प्रैक्टिस करें, पर प्रैक्टिस जरूर करें। अगर आप बाकी नहीं कर पा रहे दंड धाटी करें, सूत्र नीति को कर सकते हैं, जल नीति को ट्राई कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा करेंगे
और गाइडेंस मैं अवेलेबल हूँ, जब मर्जी आप फोन करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये एक आपके धारणा बन जाएगी कि बिना षट कर्म के मैं शुद्ध नहीं हूँ। जैसे आपकी धारणा बनती है कि बिना ब्रश के खाना नहीं खाना है या सोना नहीं है, उससे दांत साफ रहेंगे, ये धारणा बनी हुई है। उस धारणा के जाते आप समाधि में आ जाते हैं। रोज ब्रश करने के लिए मैंने अपने खुद के घर में देखा है, बच्चों को वाइफ को वो लगे रहते हैं उसको ऐसे एज इफ कोई पित्तल है उसको पॉलिश करना है, फौजी भाषा में है ना, पित्तल पॉलिश करना। तो इट इज नॉट दैट रिक्वायरमेंट इज नॉट देयर। आपका धारणा बननी चाहिए किसके लिए? शुद्धि के लिए। और शुद्धि शरीर का एक स्वाभाविक कर्म है, इसको आपको करने की आवश्यकता नहीं है, स्वाभाविक कर्म। बस आपने एक धारणा बनानी है कि मैं इसको ऑटोमेटिकली एक्टिवेट करूंगा, जिससे कि ये अपने स्व शुद्धि स्वच्छता हासिल कर ले। जब आपकी धारणा हो जाएगी तो अपने आप आपका ध्यान भी इस पर आएगा। जब इस पर आपका ध्यान रहेगा शुद्धि पर, तो अपने आप ही आप समाधि में चले जाएंगे जब ये शुद्धि कर रहे होंगे। अगर आप फोकस्ड रहेंगे तो आपके ऑटोमेटिकली जो मसल्स हैं नीचे तक के वो सभी अपने आप नेचुरल फॉर्म में पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम्स के तहत एक्टिवेट होंगे, और सभी को उसको आसानी से एक्टिवेट होकर जो ड्रेनेज होनी है, जो क्लींजिंग होनी है, जो रिपेयरिंग होनी है, वो सब अपने आप ऑटोमेटिकली शुरू हो। तो आप साधना में रहेंगे 1 घंटा सुबह, 1.5 घंटा, जब भी आप करते हैं षटकर्म क्रिया, तो अपने आप ही शरीर की शुद्धि। और शुद्ध शरीर ही शुद्ध कर्मों को, एफिशिएंट कर्मों को कार्यान्वित कर सकते हैं। इसलिए शुद्धि का एक बहुत अहम रोल है हमारे जीवन में। और ये शुद्धि जो शरीर की है वो प्रथम है, क्योंकि यहीं से आप शुरू करेंगे आगे का सफर। चाहे वो प्राणमय कोश का हो, चाहे वो फिर मनोमय कोश का हो, चाहे वो विज्ञानमय कोश का हो, चाहे वो आनंदमय कोश का हो, या आत्म का हो। क्योंकि ग्रॉस से सटल की तरफ जाया जा सकता है, सटल से ग्रॉस को पहुंचना बहुत कठिन है। उसके लिए जैसे कोई मुझसे पूछ रहा था कि मैं अगर प्राणायाम शुरू करूं और तो कितने दिनों में मैं ये हासिल कर सकता हूँ। तो जो जहां तक मैंने पढ़ा है तो उसमें कहते हैं 10 साल में रोज 8 घंटे प्रैक्टिस करने से आप योग की सिद्धि हासिल कर सकते हैं। और लेकिन हम फिर भी मतलब ये तो तथ्य है जो कि किताब में दिया है, पतंजलि योग दर्शन में या हठ योग में तो दिया है स्वात्म राम जी ने, 10 साल तो 8 साल से 10 साल तो कम से कम लगेंगे 8 घंटे रोज करने से। और हम सोचते हैं कि बैठ के मेडिटेशन करें और हमें आत्म जो है वो दिख जाए और हम स्वतंत्र हो जाएंगे अपने जन्म मृत्यु से। ये तो एक मिथ्या है। आपको शरीर को शुद्ध करना है, शरीर से अपने आप ही जो प्राण है वो शुद्ध होंगे, और प्राणों की शुद्धि से भाव शुद्ध होंगे, भावों की शुद्धि से बुद्धि शुद्ध होगी, बुद्धि की शुद्धि से ही कर्म ठीक होंगे, जिनसे कि अपने आप ही आनंद आए, और वो आनंद ही आत्म का ज्ञान है। सो आज डेमोन्स्ट्रेशन की वजह से समय कम रहा एक्सप्लेनेशंस का। सो आई विल ट्राई कि नेक्स्ट टाइम इसको एक्सप्लेन कर सकूं, अलग से कोई वीडियो डाल दूं जिससे कि एक्सप्लेनेशन हो जाए कि किस कारण से, किस प्रकार से, क्या इसकी तकनीक है षटकर्म की, और इसके फायदे क्यों हैं। जैसे मैंने कहा ज्ञान इम्पोर्टेंट, हठ योग में भी ज्ञान का जो महत्व है वो उतना ही है। तो ज्ञान जो है वो महत्वपूर्ण है कि ये क्यों हुआ। तो अगले एपिसोड में या अगले जब भी इंटरेक्शन होगी तो मैं आप लोगों को धन्यवाद। थैंक यू मेहरबान, थैंक यू।